صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں میری بات دھیان سے سنو، جو تھک گئے ہو، گبر کے بچے تھک گئے ہو، عزت سے جا کے سو جاؤ۔ جس طرح میلاد میں آنے کا ثواب ہے، اسی طرح دین کی بات میں بول کر ڈسٹرب کرنے کا عذاب ہے۔ تو جو تھک گئے ہو وہ آرام سے جا کر بچے بڑے لوگوں کا ذکر، یعنی اپنے سے بڑے لوگوں کا ذکر صالحین یا ذکر سید الانبیاء والمرسلین یا ذکر پروردگار شروع ہو، اور جب اللہ کا ذکر شروع ہو تو خاموشی کے ساتھ جتنا دیر سن سکتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں سننا ہے آرام سے جا کے سو جاؤ۔ کیوں؟ تین عادت بزور بازو نے تان بخشت خدائے کوئی چیز اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اگر ثواب ملے گا تو مولوی صاحب کو نہیں دینا ہے، نہیں کیوں دیکھ کر دینا، حاجی صاحب کو دینا ہوتا تو جو ان کو ثواب دیتا، مولانا اسماعیل کو دینا ہوتا تو اپنے رشتے دار اور پتیدار کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کو دینا، اور ذرا سی بات پر اللہ راضی ہو جائے تو رحمتوں کا درجہ بڑھتا ہے، اور ناراض ہو جائے تو 400 سال آدم علیہ السلام سرندیب کی سرزمین پر سر رکھ کے روتے رہے، حنان و منان کہہ کے تمہارے رب نہیں۔ اس لیے تقریر سنو یا نہ سنو، وہ انداز پیدا کرو جس سے پتا چلے کہ آپ رب کو راضی کرنے آئے۔ خوشی کی بات یہ ہے، دیکھو ہوتا یہ ہے کوئی آدمی کچھ کام کرتا ہے تو اپنے بچوں کو دکھاتا کیوں معلوم، تاکہ بچے جا کر اس راستے پر چل سکیں۔ اگر عصمت علی اور ان کے لڑکوں نے، جس کی سرپرستی قاری رضی اللہ کے ذمہ ہے، انہوں نے میلاد کا موڈ اور ذہن دیا ہے تو صرف اس لیے تاکہ مولویانہ شان بھی باقی رہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی پہچان بھی باقی رہے اور سینے میں جان ایمان بھی باقی رہے اور سنیت کی نشان بھی باقی رہے۔ اس کا مطلب ہے ذکر رسول اللہ، ورنہ شادی تو نشا کے بھی ہو جاتا۔ ابھی ایک ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہوگا، ایک جگہ ہم میلاد میں گئے تھے، عورتیں بڑی عقل مند ہوتی ہیں۔ دیکھو میلاد میں بے ادبی کا نتیجہ کیا ہوگا، عورتیں بڑی عقل مند ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب کہتی ہیں اگر بچہ ذرا لولا لگنا پیدا ہوگا تو کہتی سورج گرہن کی تاثیر سے، بچہ اگر ذرا کانا کھدرا ہو جائے، اپاہج ہو جائے تو لوگ سوچتے ہیں چاند کی کارستانی ہے۔ ہم نے پوچھا سورج کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورج کی کوئی کارستانی نہیں ہے، هو اللہ الذی خلق الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ سورج کیا ہے؟ ہمارا غلام ہے، تمہارا غلام ہے، ان کا غلام ہے، ان کا غلام ہے۔ یہی سورج غلامی کرتا ہے، تیرے فصل کو اپنی تفیق دے کے پکاتا ہے، تیرے بدن کے جلدوں کو وٹامن ڈی دے کے تجھے پیٹ و تندرست رکھتا ہے۔ یہ سورج کیا ہے؟ تیرے کپڑوں کو سکھاتا ہے، تیرے فصل کو پکاتا ہے، تیرا دنیا کا ہر کام کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ رات کو ہٹا کر خدا کے روشنی دے کے تجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بول تیرے ہاتھ میں تارک تو کیوں خریدتا ہے؟ تاکہ یہ میری غلامی کرے۔ جو غلام ہوگا وہ آقا کو سزا نہیں دے سکتا، جو غلام ہوگا وہ مالک کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا تو میرا ایک سوال تھا، اسی محفل میں بہت لوگ وہاں موجود تھے جو وہاں تھے آج یہاں ہیں۔ عورتیں کہتی سورج گرہن سے ہو گیا، ہم نے کہا اچھا تو یہ بچہ چونی کم کیوں پیدا ہوتا، چونی کم کیوں پیدا ہوتا؟ چلو سورج گڑبڑ تھا تو تھائرائڈ گیا،
चांद गड़बड़ था तो हाथ अट गया। जवानी कम क्यों पैदा होता है बच्चा, तो कहना पड़ेगा जिसने जिक्र रसूल का मजाक उड़ाया उसका बच्चा जरूर जवानी कम पैदा होगा। वो 2.5 होगा। मशीयत कहती है ये जब ना खुदा का हुआ ना मुस्तफा का हुआ तो इसको ऐसा रखो ना ये मर्दों में शुमार किया जाए ना औरतों में। ये जिक्र रसूल है। 10 मिनट बैठो। देखो कुरान पढ़ने का तरीका क्या मालूम है? कुरान शरीफ पढ़ने का आर्डर उलमा ने उसी वक्त तक दिया है जब तक दिल लगे, और जब दिल लगना बंद हो जाए तो कुरान शरीफ बंद कर दो, थोड़ी देर आराम कर लो। उसके बाद जब दिल फ्रेश हो जाए तब फिर कुरान शरीफ पढ़ना चालू करो। क्यों? क्योंकि लापरवाही नहीं पढ़ना चाहिए। और रही जिक्र रसूल तो एक सवाल और मैं करता हूँ आपसे, बल्कि सवाल क्या करता हूँ जवाब देता हूँ। जितने लोग इसमें पढ़े लिखे लोग होंगे अगर मौका नहीं मिला तो साल में एक बार कुरान शरीफ उठाते हैं। हाजी साहब जब कुरान शरीफ उठाते हैं और कुछ औरतें बच्चियां भी पढ़ी हुई होती हैं और जब वो कुरान शरीफ उठाती है तो अगर पूछा जाए कितना पढ़ा, अरे बोले जब हम पढ़ते तो जमाई बहुत आता, हम जब पढ़ने लगते हैं तो नींद आती है, हम जब पढ़ने लगते हैं तो दुनिया की खुराफात ज़हन में आती है। हमने कहा ये कौन कर रहा है? कहने लगे ये शैतान के तरफ से। हमने कहा वो शैतान क्या चाहता है? कहने लगे बस वही कुरान भुलाना चाहता है। मेरी बात समझो, कुरान भुलाना चाहता है। हम कहते हैं जब कुरान पढ़ना हो तो तुझे शैतान बहकाता है, जब नमाज पढ़ना हो तो तेरे पिछले कारनामे रकातों में याद आते हैं, जब तू रुकू में जाता है तो घर का सारा मोमिया तुझे याद आ जाता है, जब तू सजदे में होता है तो तेरे पिछले कारनामे याद आते हैं। अब हम तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं, जब जिक्र नमाज से शैतान भगाता है, कुरान से शैतान भगाता है, रोजे से शैतान भगाता है, हज से शैतान भगाता है, तो बोल सबका मावा व मंबा जिक्र रसूल है, तो बोल इससे शैतान नहीं भगाएगा तो और क्या करेगा? इससे शैतान दूर नहीं रखेगा तो और क्या करेगा? यही काम है शैतान का। जब जब नेक काम करने लगोगे तब तब उसमें लकड़ी लगाने वाला शैतान के रूप में कोई ना कोई आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप तकरीर सुनने आए हो या नात शरीफ सुनने आए हो, अब हाजी साहब ने मज़ाहिया आशार किए कहे तो इतनी हंसी की बात थी तो शैतान जरा अंदर से और ज़ौक़ पैदा करता, वो इतनी लंबी बना देता। ये बात समझ, ये क्या है? ये जिक्र रसूल है। ये ना सोचो कि बच्ची की शादी है कि बच्चे की शादी है, शादियां तो होती रहती हैं, लेकिन जरा उस बच्ची के नसीब को देख, उस लड़की के नसीब। माओ बहनो या तो बैठो या तो भागो, मैं तुम्हारे समाज का मोहताज नहीं हूँ। मैं बचपन से आज तक लाउड स्पीकर ही पर खेलता आया हूँ और अल्लाह का शुक्र है अपने भारत के बहुत से शहरों का मैंने दौरा भी कर लिया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो एक बार और कहा था, आप भी कह दूं, ये टोपी सिर्फ जिक्र रसूल का सदका है, ये चश्मा जिक्र रसूल का सदका है, ये वाच जिक्र रसूल का सदका है, ये लिबास जिक्र रसूल का सदका है, हमारी बाइक जिक्र रसूल का सदका है, हमारी कार ये जिक्र रसूल का सदका है, हमारे परिवार ये जिक्र रसूल का सदका है, हमारा घर मकान सब जिक्र रसूल का सदका है, सब कुछ उन्हीं का सदका है। क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ बेशक। वो जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ईद मिलादुन नबी, अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने कुतुबुल मदार, फैज़ाने सरकार दरिया शाह, फैज़ाने शेरे सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। के शादी का अंदाज देखो, 1500 साल पहले, 1500 साल पहले मक्का में एक मेला लगता था। बहुत ध्यान से सुनो, आपके लिए तो पुरानी हो चुकी होगी, लेकिन कुछ लोग टाइम से मस्जिद तक नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए ये है। और हमारे उलमा के खिताबत के बाब को वाक़ करने के लिए है। 1500 साल पहले आज हम भी शादियां करते हैं अपने लड़कों की, लड़कियों की, भाइयों की, बहनों की, जो जिसको अल्लाह तौफीक देता है शादी करते हैं। शादी हर एक की तमन्ना होती है। एक तमन्ना 1500 साल पहले जागी थी हाजी साहब, मक्का के बाजार में एक मेला लगता था साल भर में, और उस मेले में मर्द कोई नहीं जाता था, सिर्फ औरतें और बच्चियां जाती थी। उस मेले में बच्चियां और औरतें जाती थी। उन बच्चियों और औरतों के मेले कोई गैर आदमी हाथ दाखिल नहीं हो सकता था, कोई बच्चा दाखिल नहीं हो सकता था। वो बच्चियां और वो औरतें मेले में मगन थी। इतने में एक खुट्टा आदमी अपने सर पे अमामा डाले हुए, अपना एक लंबा चौगा पहने हुए और अपने बगल में किताबों का बस्ता लिए हुए
और औरतों के बीच में दाखिल होने लगा। और जब वो दाखिल होने लगा तो औरतों ने उसे धक्का देना चालू कर दिया, उसे बाहर निकालना चालू कर दिया। वो इतना बुढ़ा था कि पलकों के बाल और आंखों की भावों के बाल भी पक चुके थे। वो अपनी पलकों को बात करने के लिए मशक्कत करता तब दूसरे को देख पाता। और तो धक्का मार के उसको बाहर निकाल रही है। वो कह रहा है औरतों खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूं। क्या बात है? तो दरूद व सलाम पढ़ो। आपको नहीं है, मैं जानता हूँ, मुझे सब लोग लाउड स्पीकर लेने शहर में आते हैं, ये लोग जंगल में वापस चलते हैं। अब अंदाजा सब लोग तरक्की करके शहर के तरफ आते हैं और यहाँ के लोग इतने अकलमंद तरक्की करके जंगल से ले आए। अब भला बताओ, जंगल में बंदर भालू यही तो गाते होंगे, तो आवाज कैसी होगी? खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि मक्का के मेले में वो हजारों औरतें लड़कियां हैं अरब की, और उनके बीच में एक बुढ़ा घुस आया। वो बुढ़ा घुस आया और बुढ़े को औरतें बाहर निकालने लगी। और नादान, तुझे पता नहीं है ये औरतों का मेला, तू कहाँ से आया है? हमारे मर्द घरों में तू यहाँ आ गया, हमारे बच्चे घरों में तू यहाँ आ गया, हमारे बीच। उसने कहा, मोहतरमान सुन लो मेरी बात, ए खवातीन तुम मेरी बात सुनो, मुझे भगाओ नहीं, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। जब खुशखबरी का नाम सुना, सारी औरतें खामोश हो गई। कहते हैं उसमें एक 8 या 10 साल की बच्ची भी मौजूद थी। उसने कहा, औरतें उस बुढ़े को ढकेल रही थी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था ये बुजुर्ग आने वाला कुछ बताए, मैं कुछ ना कमसिन बच्चे चाहते हैं मैं सुनूं, और कुछ बड़े चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं, इसको निकाल दिया जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चे तो माशाअल्लाह ये अच्छे हैं तो भी बच्चे हैं, बुरे हैं तो भी बच्चे हैं, जरा ये मन के कच्चे हैं। जिस दिन ईमान इनका पक्का हो जाएगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग मदरसे के शक्ल में इन्हीं बच्चों ने खड़ी कर दी है, इनके ताउन से खड़ा हुआ है, इनकी मदद से खड़ा हुआ है। और ये औरतें जो जोगी और जादूगरों और पंडों लोगों को हाथ दिखाने के चक्कर में हजारों रुपए फूकती हैं, इनको 10 रुपए की तौफीक नहीं होती। 20 साल हो गया कि मस्जिद तक लाकर पहुंचा दे, जितनी मेहनत करते हैं ये बच्चे दोनों, तुमको भी मरना है। मैंने देखा इन बच्चों ने, ना खान और शौरा ने अपना कलेजा निकाल के पिला दिया, लेकिन आप हाथ मल रहे थे। भाई अफसोस, अगर मोदी हुकूमत 5 का नोट छाप देती तो 10 देना नहीं पड़ता। अरे अपने घर के मेहमानों की कदर करो। अल्लाह का शुक्र है मैं ये 10-20 का मुहताज नहीं हूँ, न हाथ फैलाने की मेरी आदत है। मुझे दुख उस वक्त होता है कोई जब नाते नहीं पड़ रहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं। फरिश्तों ने कहा, मौला इब्राहिम के पास माल दौलत कब है, तूने उसको अपना खलील बनाया। बोले तो खलील नहीं जानते फरिश्तों, खलील को समझना चाहते हो तो जहाँ बकरियां चरा रहा है चले जाओ। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास मलाइका आए आदमी की शक्ल में। आने के बाद में कहने लगे, इब्राहिम मैंने सुना तू अल्लाह से मोहब्बत करता। बोले हाँ जरूर करता हूँ। बोले कितना करता है? बोले नाप जो मेरे पास नहीं, बेइंतहा करता हूँ। तो बोले ठीक है, अगर तुम मोहब्बत करते हो उसकी कोई निशानी? तो कहने लगे उसकी निशानी मैं क्या बताऊँ, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। कहने लगे न जान चाहिए न माल चाहिए, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो कोई तस्वीर सुना दे। अल्लाह से मोहब्बत है, आदमी के रूप में आए थे, अल्लाह से मोहब्बत है तो कोई तस्वीर सुना दे। हज़रत इब्राहिम ने कहा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत इब्राहिम ने कहा सुब्हान मलिकुल कुद्दूस। हज़रत इब्राहिम गिरे और बेहोश हो गए मोहब्बत से, मदहोशी के आलम में। जब इन्होंने अपने आप को संभाला तो कहने लगे, ओ अल्लाह के प्यारे बंदो फिर से कह दो। तो कहने लगे, सुनो इब्राहिम, पहला जुमला, पहला कलमा मैंने आपको जो सुनाया है वो मोहब्बतन फ्री था। अब ये मजदूरी के एवज, पैसे के एवज, वजीफे के एवज सुनाऊंगा। अब तुम मुझे कुछ दोगे तो सुनाऊंगा। हज़रत इब्राहिम ने कहा क्या चाहते हो? बोले ये तुम्हारी जो हजारों हजार बकरियां हैं उनमें से मुझे आधा दे दो तो एक बार पढ़ दूंगा। हज़रत इब्राहिम ने कहा अल्लाह के नाम पर देना। अपने दिल में सोचा अल्लाह के नाम पर देना है, अगर अल्लाह के नाम पर आधी बकरियां दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह चाहेगा फिर मिल जाएगा। इसलिए रिज़्क़ खुद उड़ के पहुंचती है जो तकदीर में है, रिज़्क़ खुद उड़ के पहुंचती है जो तकदीर में है। मेरे मिल्लत का नौजवान, और अल्लाह का नाम ही है रज़्ज़ाक़।
अलेश नहीं है, रज़्ज़ाक़ रोजी अल्लाह देता है। अब तो हाल ये है हमारा, खुदा को भूल गए लोग, फिक्र रोजी में तलाशे रिज़्क़ है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं, तलाशे रिज़्क़ है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत इब्राहिम ने कहा दोबारा सुनाओ। बोले क्या दोगे? बोले आधी बकरियां ले लूंगा तब सुनाऊंगा। बोले ले लो। एक बार सुभान अल्लाह के दोस्त से कहा, हज़रत इब्राहिम ने आधी बकरियां, मुख्तसर ये हज़रत इब्राहिम को चैन नहीं आया, फिर आबे माही की तरह ताप रहे हैं। कहने लगे दोबारा सुना दो। कहने लगे आप क्या दोगे? बोले आधी ये भी ले दो। उन्होंने दोबारा सुना के आधी ले लिया। बोले आप फिर सुना दो। बोले आप क्या दोगे? बोले मैं तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे बकरियों का चरवाहा बन जाऊंगा। फरिश्तों ने फिर सुनाया, और जब हज़रत इब्राहिम ने कहा मुझे ले चलो, तब फरिश्तों ने राज बताया। बोले हम मलाइका, हमें बकरियां नहीं चाहिए, हम खुदा से तेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे थे। खुदा को हम तो सिर्फ ये जानते थे कि तू अल्लाह के राह में कितना खर्च करता है। इब्राहिम ने कहा अगर मुझे पता होता तो मैं शर्त नहीं लगाता, मैं कहता सिर्फ एक बार सुनाओ सब कुछ ले जाओ। मशीयत ने ऐलान किया, फरिश्तों तुमने देखा इसलिए मैंने इसे अपना खलील बनाया है। अब एक बात और बताता हूं, किसी जिम्मे में आपने देखा होगा, आप हैं दिन रात कमाते हैं और आपका बच्चा मौलवी है, वो महीने या साल भर में तनख्वाह पाता है, पहनता है आपसे अच्छा, तकलीफ हो रही है, खाता है आपसे अच्छा, तकलीफ हो रही है, चलता है आपसे अच्छा, तकलीफ हो रही है, क्रेडिट उसकी है आपसे अच्छा, तकलीफ होती है, चरित्र है वाले आपको तकलीफ होती है, बातचीत सबसे बेहतर आपको तकलीफ होती है। आप चले जाएं कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपका बेटा जब निकलता है लोग सलाम करते हैं। हम आपने कहा हजरत बात क्या है? हमने कहा नादान ये सुन्नत इब्राहिमी है। उस मौलवी ने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, खुदा ने अपनी मशीयत को उसके हवाले कर दिया। जो अल्लाह का हो जाता है मशीयत कायनात खुदाबंदी उसके हवाले। नौजवान मैं अर्ज कर रहा था, मक्का में मेला है, सबने भगा दिया, सबने भगाया, लेकिन एक लड़की है, उसने कहा बाबा जी आओ मैं आपको बैठाती हूँ। देखो इज्जत देने का मतलब ये हुआ इज्जत पाना, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। मौलवियों के सामने जुआ खेलते हो, समझते मौलवी को चिरार नहीं, खुदा की कसम सुन, खुदा को उस मौलवी को गवाह बना रहे हो, कल मैदान महशर में गवाही देगा। जब अल्लाह पूछेगा तूने खेला, कहेगा नहीं, तो अल्लाह उसी मौलवी को खड़ा कर देगा बोल तेरे सामने। वो कहेगा ऐ अल्लाह मैं जा रहा था मेरे सामने खेला। और जो छिपा लेते हैं कल वो मैदान महशर में कहेगा खेल तो रहा था मौला, लेकिन तेरे एक बंदे मौलवी की इज्जत की है, मौला तू रहम फरमा। रब फरमाएगा सुन, अगर ताजीम में तूने जुआ छोड़ा है मौलवी के, तो जहाँ मौलवी जाएगा वहाँ तू चला जा। अब अंदाजा लगाओ क्या करना चाहिए तुम। मैं नहीं कहूँगा कि मुझे इज्जत हो, सुनो मैं अपनी इज्जत खुद कर लेता हूँ, मैं अपनी इज्जत खुद कर लेता हूँ। देखो अपने कपड़े की इज्जत आप करते हो नहीं करते हो? बोलो, उसको धुलते हो, नील लगाते हो, ढेरों पाला रोड का जमाना चल गया, लेकिन इस्त्री करनी हो, फिर उसको अटैची में सजाकर या अलमारी में सजाकर रख देते हो, वो कपड़े की इज्जत करना होगा। तो जैसे तुम अपने कपड़े की, अपने औरतें अपने जेवर की, हम लोग अपने लिबास की इज्जत करते हैं, वैसे तन बदन की इज्जत तुम खुद करो। और जब तुम इज्जत करोगे रब ऐलान फरमा देगा, ए फरिश्तों ऐलान कर दो ये अपनी इज्जत बचा रहा है, तुम लोग जाकर ऐलान करो ये इज्जतदार है। और जब अल्लाह इज्जत अदा करेगा तो कोई जिल्लत नहीं दे सकता है, क्योंकि कुल अल्लाह कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तनज़िउ मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर शै मुमकिन पर कादिर है। तो वो बच्ची पकड़ ले गई। आज की बच्चियां देखो, आज की बच्चियां देखो, हमारी तुम्हारी बच्चों का यह हाल है, लेकिन वो 10 साल की बच्ची बहू बाबा को पकड़ ले गई और पकड़ कर ले गई, कहने लगी बाबा तुम मुझे वो खुशखबरी सुनाओ जो सुनाने के लिए देने लगा। जानते हो वो मक्का से बाहर का एक यहूदी आलिम था, मक्का के बाहर का यहूदी आलिम था, और उसे पता चला था कि मक्का में औरतों का मेला है। उसने सोचा होगा जब मैं ये खुशखबरी सुनाऊंगा तो औरतें खुश हो जाएंगी, और जब सब मदद करेंगी तो मेरा कुछ मौजूद का चल जाएगा। लेकिन बाहर तकदीर
तू जिस नियत से भी आया हो, खुशखबरी जिसकी देने आया था वो बहुत अजीम है। जिसने खुशखबरी देने आया था वो बहुत अजीम है। खुशखबरी देने वाला तो अजीम नहीं था, लेकिन जिसकी देने आया था वो बहुत अजीम था। अब ये बात अंदाजा लगाओ, मौलवी की इज्जत न कर, मौलवी के उस बात की इज्जत कर जो मौलवी तुझे बताने वाला है, जिसकी खबर देने वाला है, जिसकी अजमत बयान करने वाला है, जिसके सदक़े में कायनात पल रही होती है। मेरे मिल्लत का नौजवान और लड़की ले गई, पकड़ कर एक चबूतरे पर बिठाया, बाबा जरा मुझे बताओ तो खुशखबरी क्या है। तो उसने कहा जब औरतें खामोश हो जाएंगी तब बताऊंगा। औरतों ने खामोशी अख्तियार की, जब दो चार चुप हुई तो सबके कान उधर लग गए, सब सुनने लगे ये बाबा क्या कहने वाला है। अब बाबा बोल क्या रहा था मालूम है? उसने कहा औरतों सुनो, मक्का में एक ऐसा शख्स पैदा होने वाला है, मक्का में एक ऐसा शख्स पैदा होने वाला है जो नबियों का नबी होगा, रसूलों का रसूल होगा। उसके सदक़े में हवाएं चलेंगी, उसके सदक़े में बारिशें होंगी, उसके सदक़े में गरीबों का मनावा होगा, उसके सदक़े में यतीमों का सहारा बना जाएगा, उसके सदक़े में लड़कियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया जाएगा, उसके सदक़े में कायनात पलेगी, वो आने वाला है। तो औरतों ने कहा आएगा तो आएगा। तो उसने कहा इससे अहम बात है, उसका निकाह तुम्ही में से किसी एक का होना है। बेशक उसका निकाह तुम्ही लोगों में से किसी एक से होना है। तो सब औरतें तू चुप थी। वो 10 साल की लड़की गई दौड़ते हुए अपने घर, और घर से चंद सिक्के लाई, बाबा को नजराना दिया, और उसके बाद घर में गई, कमरे का दरवाजा बंद किया और आंचल उठा दिए। मौला अगर ये बाबा सच कहता है तो नबियों के ताजदार को मेरी अगर वो बाबा सच कहता है तो उस रसूल को मेरी झोली में डाल दे, यानी मेरी जौजियत में उसको दे दे, मुझसे मेरा निकाह उससे करा दे। अल्लाह अकबर। आज की औरतें, आज की लड़कियां चुनती हैं तो डॉक्टर चुनती है, प्रोफेसर चुनती है, और जो है इंजीनियर चुनती है, थानेदार चुनती है, मिनिस्टर चुनती है, अब सबको चुनती है। और कुछ लोग तो दौलतमंद को चुनते हैं। एक हाथ ना हो तो भी चलेगा, एक कान ना हो तो भी चलेगा, एक पैर ना हो तो भी चलेगा, वो ये 2-2 साल ना नहाता हो तो भी चलेगा, मंजन नहीं करता हो तो भी चलेगा, मस्जिद ना जाता हो जुमा पढ़ने तो भी चलेगा, ईद बकरीद ना जाता हो तो भी चलेगा। बस ये देखो उसके पुरखों की मोहरें उसके घर में है कि नहीं। बस शादी कर दी जाती है, बाहर तकदीर उस बच्ची की। उसने सर हाथ उठाया, मौला अगर वो तेरा रसूल है तो उसे मेरी गोदी में डाल। हमने फरमाया फरिश्तों से गवाह हो जाओ। अभी वो बच्चा 5 साल बाद पैदा होगा। 10 साल की लड़की है, 5 साल के बाद वो लड़का पैदा होगा, लेकिन अभी से ये मांग रही है। अचानक मामला ये हुआ, वो लड़की जवान हुई तो माँ बाप ने एक जगह शादी कर दी। चंद दिन के बाद वो शौहर इंतकाल कर गया। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर दी, वो भी इंतकाल हो गया। फिर तीसरी शादी कर दी, वो भी इंतकाल हो गया। उसके बाद उस लड़की की उम्र 40 साल हो गई। और ये जो बच्चा लड़की के दुआ मांगने के 5 साल पैदा हुआ था, इसकी उम्र 25 साल की हुई। मशीयत ने एक दिन वो दुआ कबूल ही कर लिया, क्योंकि लौहे महफूज पर क़ज़ाक़े अज़ल ने लिख दिया था। और जो दिन तारीख लिखी थी, एक दिन वो औरत मक्के की बहुत रईस औरत बन गई थी। उसके पास बहुत दौलत था, मक्के के अच्छे लोग उसके यहाँ चाकरी करते थे। एक दिन उसने कहा कि क्यों ना मक्का में जिसका नाम मोहम्मद है, बरस वाले और पाकबाज है, बड़ा सादिकुल वाद और अमीन है, उसको अपना जो है ये माले तिजारत लेकर भेजा जाए। तो उसके घर में एक नौकर था, उसको बुलाया और कहने लगी एक काम करो, उसके चाचा अबू तालिब को बुलाओ। अबू तालिब को बुलाया गया, और जब अबू तालिब उस औरत के घर गए तो औरत ने कहा अबू तालिब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा माले तिजारत अपने भतीजे के साथ या अपने भतीजे को भेज कर माले तिजारत लेकर जाओ, बाहर बेचो, और जो मजदूरी या जो मुआवजा मैं और नौकरों को देती उससे डबल दूंगी। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा
میں اپنے بھتیجے سے پوچھے بغیر لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں آواز اٹھاتے رہے، لیکن ان کا عقیدہ دیکھو، بولے بھتیجے سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور جب بھتیجے سے معلوم کیا تو بھتیجے نے کہا چچا جان میں تو آپ کے ساتھ ملک شام و یمن کا سفر کر چکا ہوں، مجھے تجارت کا سلیقہ معلوم ہے، میں بیٹھ کر آپ کے سر کے بوجھ نہیں بننا چاہتا، میں خود والے تجارت لے کر جاؤں گا اور تجارت کر کے لاؤں گا. اب دیکھو ان کے ساتھ ایک غلام تھا جس کا نام میمنہ تھا، اس کو ساتھ میں بھیج دیا. اب یہ جانے لگے تو اب آقا کریم بھی جا رہے تجارت کے لیے، اسی عورت کا مال تجارت لے کر اب تجارت کو جا رہے. تو جانتے ہو کیا ہوا؟ جب آقا کریم کو کچھ کھانا ہوتا تو پہلے اپنے ساتھی کو کھلا دیتے تب کھاتے تھے، پہلے اس کو پلا دیتے تب پیتے تھے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، ابھی 25 سال کی عمر بھی مکمل پوری نہیں ہوئی ہے. کھانے سے پہلے اس کو کھلاتے، پینے سے پہلے اس کو پلاتے، اور جب کوئی بیٹھنے کی اچھی جگہ ہوتی تو اس کو بٹھاتے اور اس کے بعد میں اپنا دھوپ پہ چلتے. لیکن وہ نوکر جو تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ جب ابو طالب کا بھتیجا جب چلتا ہے تو اس کے سر ہاتھ میں کوئی چھاتا نہیں ہے، کوئی امبریلا نہیں ہے، کوئی درخت کا ٹہنی نہیں ہے، لیکن جب وہ چلتا ہے تو میں چلتا ہوں تو ننگا سر، لیکن جب وہ چلتا ہے تو اس کے سر پہ پرچھائی یعنی سایہ ہے. تو وہ کیا کام کرتا؟ وہ دور ہوتا تو ان کے قریب آ جاتا، وہ آگے چلے جاتے تو یہ بڑھ کے آگے چلا جاتا، یہ اگر پیچھے رہ جاتے تو وہ پلٹ کے پیچھے آ جاتا. ہم نے کہا تو آگے پیچھے کیوں کر رہا ہے؟ ارے بولے دھوپ کی تمازت میں اور اس جو ہے سورج کی گرمی میں یہاں کوئی امبریلا چھاتا نہیں ہے، میں ان کے قریب جا کر سایہ تلاش کرتا ہوں. ہم نے کہا امام احمد رضا نے اور کیا کہا ہے؟ ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بند کر دیا تجارت کے لیے. اب جب آپ تجارت کے لیے گئے تو ملک شام کے قریب پہنچے، راستے میں راہب کا ایک گرجا گھر ملا. اور جب گرجا گھر ملا تو مکہ والوں نے دباؤ ڈالا. اصل میں مکہ والے بڑے دبنگ تھے اور چونکہ مکہ میں کعبہ شریف تھا اور لوگ آتے تھے وہاں، اس لیے لوگ عزت کرتے تھے. جیسے ہم بریلی شریف چلے جاؤ پوجا وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، لیکن بہرائچ جاؤ، میرے بچوں میری بات دھیان سے بہرائچ جاؤ، ہم بابا کے وجہ سے ان مشمندوں کو بھی عزت دیتے ہیں، ان پیکڑوں کو بھی عزت دیتے ہیں، ان چٹھی پہننے والوں کو بھی عزت دیتے ہیں، اور ان جو فاسق مولین کو بھی عزت دیتے ہیں، ان تاریخ نماز کو بھی عزت دیتے ہیں. ہم نے کہا عزت کیوں دوں ان کو؟ کہنے لگے ہما اس کو نہ دیکھ یار، صاحب مزار کو دیکھ اس کے قریب بیٹھے ہیں، صاحب مزار کو دیکھ اس کے قریب بیٹھے ہیں. ہم اجمیر جاتے ہیں، لوگ پکڑ کے جیبوں سے روپیہ چھینتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے نہیں الجھتے ہیں. ہم نے کہا نہ الجھنے کی بات کیا ہے؟ بولے اس کو نہ دے، یہ پیکڑ ہے، یہ گنجیڑی ہے، یہ گردلہ ہے، یہ نسیڑی ہے، یہ چھپری ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ دیکھ کہاں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے ان منڈے مجاوروں سے ہم الجھتے نہیں، بلکہ معین الدین حسن سنجری کے طفیل ان کی بھی عزت کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے مکہ میں کعبہ تھا، کعبہ کی بنیاد پر کعبہ میں رہنے والوں کے لوگوں کی باہر کے لوگ عزت کرتے تھے. بولے ان کو نہ دیکھ، یہ اجٹ ہیں، یہ ٹیڑھے ہیں، یہ خطرناک ہیں، یہ جھگڑیلو ہیں، یہ گالی گلوچ بکنے والے ہیں، یہ بات پر قتل و غارت کرنے والے ہیں، یہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہیں. سب کچھ ایک طرف کعبہ کے قریب رہتے ہیں، یہ ایک کعبہ کے قریب رہتے ہیں، یہ ایک طرف. یہی تو وجہ ہے اگر کوئی آدمی داڑھی چھلا بھی ہو لیکن مسجد کے قریب ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں. کوئی آدمی موچھ کٹا ہوا ہو لیکن مسجد سے جڑا ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں. کوئی آدمی ہم سے ناراض بھی ہو لیکن مسجد سے جڑا ہے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ارے جب مزار سے جڑنے والے کی عزت کر سکتے ہیں تو اللہ کے گھر سے جڑنے والے کی عزت کیوں نہ کریں؟ اور ترنم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے مدرسے سے جڑو جہاں اللہ کے رسول کی پہچان کرائی جائے. تو اللہ جس کو توفیق دے گا درود و سلام پڑھو ایک بار. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لیکن ابھی اس عورت نے جس سے شادی ہونی تھی قریب سے نہیں دیکھی.
कौन देखता इसे ताबती जो करीब से किसे आगे खुद ही समझ लेना। खैर ये मक्का वाले पहुंचे, गिरजा घर वाले क्या पैगाम पहुंचाए, बोले हम मक्का के ताजिर हैं, मक्का के। और लफ्ज़ मक्का बड़ा मशहूर, हम मक्का के ताजिर हैं, इसलिए हमें इज्जत दो, हमारे खाने पीने रहने सहने का इंतजाम करो। गिरजा घर के पादरी ने नौकरों से कहा इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। और जब दावत का वक्त हो गया कि दावत उड़ाएं चलकर, सब चले गए, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो माले तिजारत के पास लोग दिखा रहे। उसमें कोई सरकार का चचा, कोई ताया था, कोई दादा लगता था रिश्ते में, कोई कुछ लगता था, सब रिश्तेदार ही थे, कोई कुछ लगता था, कुछ सगे थे, कुछ पटीदारी के थे, कुछ मोहल्ले के थे, लेकिन सब सगे ही के करीब थे, लगते थे। कहने लगे बेटा मोहम्मद तुम यहीं बैठे रहो, दावत खा के आते हैं, जब आ जाएंगे तब तुम भी जाके खा लेना। आकाई करीब का तो हाल ही ये था सबर करना। आकाई करीब के अंदर तो इतनी खूबी थी, बात बंद कर दी जाए जरा सुनो।